गिरते वही हैं जिनके हौसलों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। आज हमारे साथ है डॉक्टर जे.के. चारियाल, जो सिंधु महाविद्यालय के प्रिंसिपल हैं। आइए सर से कुछ बात करते हैं और जानते हैं सर के बारे में। वेलकम सर। सर, सबसे पहले तो हम जानना चाहेंगे कि आपकी जर्नी, आप इसी कॉलेज के स्टूडेंट रहे हैं और अब इसी कॉलेज में प्रिंसिपल हैं, कैसे रही आपकी जर्नी फ्रॉम स्टार्टिंग टू नाउ? I was a student in this institution from 74 to 77, and thereafter I joined in this college as a junior college lecturer in 79, and thereafter personally I am working as a principal from 2013 onwards, and this institution is very much important for me, so I will put my full energy for the growth of this institution. सर, करंट सिनेरियो, इसी से जुड़ा मेरा सवाल है कि करंट सिनेरियो क्या है अभी एजुकेशन सिस्टम में? आपके टाइम क्या फ़र्क होता था, अब क्या फ़र्क है एजुकेशन सिस्टम में? हम लोग जब स्टूडेंट थे तो एक क्लास में 40 स्टूडेंट्स होते थे, और मैं जब टीचर करके यहाँ पे ज्वाइन किए then it was around 60 to 80. Now एक क्लास में 120, 140 ऐसे स्टूडेंट्स हैं. This actually diluted the quality produced by any institution. This is not only with this Sindhu Mahavidyalaya, for every other college also same is the fact. One teacher was supposed to teach around 40-50 students. Teacher-student ratio, it's totally disturbed, and it is impossible for a teacher to teach around 140 or 145 students in a class, and that actually diluted the education system. And another factor, whatever the post created is not filled by the government, because maybe because of the financial strain. अभी का सिस्टम में जितने पोस्ट वैकेंट है, 98-99 से जो पोस्ट वैकेंट है वो कंटिन्यूस अभी भी है, तो उसका 50% सैंक्शन होता है, तो बाकी 50% को कौन वो स्टूडेंट्स को कौन पढ़ाएंगे? वो लोड जो है टीचर के ऊपर आता है. सो समहाउ टीचर इज कंपल्ड टू टीच, सो इट गेट्स डाइल्यूटेड एंड द क्वालिटी of the student is totally affected. That is what we are facing. Lots of students prefer metropolitan cities rather than preferring Nagpur for their further education, for their jobs. So what you want to say about that? There is an inflow of students from village side to the cities. Of course, if a student live in city, he gets a better all-round development in different areas of life. You get good exposure, good facilities, and at the same time, if the number increases, again, for which he is coming may not be fulfilled. And we get students, lot of students from village side also, and they are better also. And once they comes here, and because of the dilutions, some of them comes out in color, very good result, whereas others may get spoiled. सर, सिंधु महाविद्यालय देखा जाता है कि सोशली काफ़ी एक्टिव रहते हैं. स्टूडेंट्स कम ओवर हियर आर फ्रॉम रिमोट बैकग्राउंड्स और रूरल एरिया से आते हैं, तो बहुत ज़्यादा सोशल एक्टिविटीज़ में भी इन्वॉल्व रहते हैं सिंधु महाविद्यालय के स्टूडेंट्स एंड फैकल्टी. जिसके बारे में कुछ बताएं. यहाँ पे जो स्टूडेंट्स आ रहे हैं, कॉलेज का नियर बाई एरिया में बहुत इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस है, और इसमें से जो स्टूडेंट्स आ रहे हैं तो उनको लिटरली बहुत गरीब सिचुएशन में है. उसके लिए यहाँ मैं प्रिंसिपल बनने के बाद देखा है कि स्टूडेंट्स के जो कंडीशंस, तो फिर हमने एलुमनी को भी यूज़ कर, एलुमनी फंड जो है क्रिएट करके स्टूडेंट्स का फीस, देन कुछ स्टाफ जो है डोनेट करते हैं, देन मैनेजमेंट
gives a sizable amount for the fee concession for economically weaker sections. Then इसके अलावा बहुत सारे social activities regarding whatever the government program we conduct very sincerely, and we have got a very good team. ये स्टाफ जो है बहुत सिंसियरली कर रहा है. हमारा NSS ग्रुप जो है इट्स वन ऑफ द बेस्ट इन नागपुर यूनिवर्सिटी, एंड एवरी ईयर वेरियस एक्टिविटी ले रहे हैं. और some of the students were counseled, and they are taking classes for poor students in different economically weaker side, and then various activities like adult education, rally, and even we used to conduct annual eye checkup camp with the support of our alumni who were already become doctors, and they are giving free of charge their consultation. And बाकी ओवरऑल एक स्टूडेंट यहाँ पे सिंधु में ज्वाइन करने के बाद बाकी स्टाफ मिलके स्टूडेंट मेंटर सिस्टम हम फॉलो करते हैं. तो हर टीचर के अंडर में अराउंड 20-25 स्टूडेंट्स हैं. उनका डे टू डे एक्टिविटीज़ के साथ वो बहुत इंटरेक्ट करते हैं. उनको जो डिफ़िकल्टी है उसको सॉल्व करने के लिए हम मैक्सिमम कोशिश करते हैं, एंड आवर स्टूडेंट्स आर वेरी हैप्पी इन दैट लाइन एक्चुअली. सवाल हमेशा स्टूडेंट के दिमाग में रहता है जब वो 12th या 10th पास करते हैं, व्हाट टू चूज़, व्हाट द नेक्स्ट स्टेप टू अटेम्प्ट, क्या स्ट्रीम लेनी चाहिए. इसके बारे में आपसे गाइडेंस चाहेंगे, और नागपुर इन्फो के माध्यम से आपसे एक मैसेज चाहेंगे स्टूडेंट्स के लिए, फॉर ऑल द स्टूडेंट्स, फॉर नॉट ओनली सिंधु महाविद्यालय बट फॉर ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ नागपुर स्पेशली, कि आप आपकी तरफ से क्या कहना चाहेंगे. We have a counseling system. कोई भी स्टूडेंट्स उनका पेरेंट के साथ में या स्टूडेंट भी अगर खुद आते हैं तो स्टाफ उनको काउंसिल करते हैं और उनका कैपेबिलिटी के हिसाब से उनको डायरेक्शन देते हैं. लेकिन ये एरिया में ऐसी प्रॉब्लम ये है कि वो थोड़ा हेसिटेट करते हैं आके कॉलेज में, इनसे कैसे मिलेंगे, ये प्रिंसिपल से कैसे मिलेंगे. हम एकदम कोई भी स्टूडेंट्स को जो भी आए उनको हेल्प करते हैं, तो भी around still hardly मेरे ख्याल से around 30 to 40% is coming to us, and we are guiding them on the basis of the mark they obtain. We are suggesting them which line you should go. Some may score 35 mark in mathematics, and if we are offering for mathematics group, we tell them that if you join that one you won't be able to do well, because the mark says that you do not have that much appetite in mathematics line, so you should go for biological line or some other commerce line. And हम ये चाहते हैं एक बार एक स्टूडेंट एक स्ट्रीम में एंटर होने के बाद उसको राइट फ्रॉम बॉटम से उनको हेल्प देते हैं, क्योंकि स्कूल में डिफरेंट स्कूल से आते हैं, डिफरेंट एरिया से आते हैं. इसके बाद उनके साथ में थोड़ा फेलोशिप बढ़ने की वजह से दे गेट्स ओपन अप. डायरेक्टली आके कोई बताता नहीं, इसलिए हमारा जो टीचर स्टूडेंट मेंटर सिस्टम इज प्लेइंग ए वाइटल रोल इन दैट. इसके अलावा कोई भी पेरेंट्स भले ये कॉलेज का हो या ना हो, आके अगर पूछना है तो उनको सजेशंस यहाँ कोई भी स्टाफ डिपार्टमेंट में जाके कांटेक्ट कर सकते हैं, और नहीं है तो प्रिंसिपल से कांटेक्ट कर सकते हैं फॉर द सजेशंस. वेल, थैंक यू सो मच फॉर योर वर्ड्स ऑफ विजडम, दैट हेल्प्स अस अ लॉट. और मुझे लगता है कि आज के यूथ को आप जैसे मेंटर्स की बहुत ज़रूरत है. थैंक यू सो मच फॉर टॉकिंग टू नागपुर.